So, today we are going to discuss about lipids. Lipids. When we heard term lipid, we think about oily substances or fatty substances. Yes, it's true. Lipids are diverse group of chemicals that includes fat and oily substances. And they are hydrophobic in nature. Hydrophobic means they are not water loving. If they are not water loving, that means they are not going to solubilize in water. And if they are not going to solubilize in water, of course they are soluble in other solvents like organic solvents like alcohols, acetone, ether, chloroform and benzene. Lipid also considered as hydrocarbons, but there is a difference between lipids and carbohydrates that is of oxygen. In carbohydrates, oxygen present in more amount, but in lipids, oxygen present in less amount. There are only 2 oxygen atoms at one end of long molecules. Lipids are chief concentrated storage form of energy, forming about 3.5% of cell content. Now we discuss about functions. They are concentrated fuel reserves. What do you mean by fuel reserves here? Our body need energy, and this energy is fulfilled by carbohydrates. But if our body deficient in carbohydrates, then fat acts as a fuel reserve of the body, and if it also deficient in fats, then protein do this work. Next, lipid is also a constituent of our membrane structure, that is of our cell membranes. They serve as source of fat soluble vitamins like vitamin A, D or K. And lipids are important cellular metabolic regulators, as well as they serve as insulating material for our internal organs and protect them from shock or injury. Now this is the classification of lipids. Lipids are classified into 4 classes. First is simple, complex, derived and miscellaneous. Let us discuss them one by one. First is simple lipids. Simple lipids are ester of fatty acids with alcohol. मतलब कि जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं वो हमारे एस्टर्स होते हैं. किससे बने होते हैं? एक फैटी एसिड और अल्कोहल्स को मिला के. ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रल और ट्रू फैट्स एंड सेकेंड इज वैक्सेस. नाउ वी डिस्कस देम. True fats are made up of carbon, hydrogen and oxygen, but oxygen is less. A fat molecule is made up of 2 components. First is glycerol and second one is fatty acid. Now we should also know that what is glycerol and fatty acids. Glycerol. Here you can see the structure. This is structure of glycerol, and here are 3 carbons. Each carbon is bearing a hydroxy group. This is structure of glycerol, a type of alcohol. Next is fatty acid. अब फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड अनब्रांच चेन होती है कार्बन एटम्स की. इट इज अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और इसमें एक COH ग्रुप होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एक एंड पर, और बाकी जो कार्बन होती हैं वो हमारी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होती हैं. और फैटी एसिड फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हमें पता है क्या होता है. सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती हैं. तो हमने क्लासीफाई किया फैटी एसिड्स को 2 टर्म पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ठीक है, यू कैन सी हियर, ये है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और ये है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें हमारी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो आई थिंक नाउ टर्म्स आर क्लियर अबाउट फैटी एसिड. Next, fatty acids classification. Fatty acids are of 2 types, as I told you, saturated and unsaturated. अब अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल आ गए हैं हमारे पास लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड एंड पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड. और अनसैचुरेटेड में अब हमारे पास अनसैचुरेटेड में भी क्लासीफाई होगा. क्यों होगा? क्योंकि या तो किसी में एक ही बॉन्ड होगी या एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगी. जब एक बॉन्ड होगी हमारे स्ट्रक्चर में तो हम उसको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड. मोनो मीन्स सिंगल. अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो होगा पॉली अनसैचुरेटेड, दैट इज पॉली मीन्स मैनी, तो वो होगा हमारा पॉली अनसैचुरेटेड.
अब इसके एग्जांपल आते हैं हमारे पास ऑलिक एसिड ओमेगा 9, इधर आते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3। अब इसको यहाँ पर हमने टर्म ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 क्यों यूज़ करी है ये भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए कि जो हमारे पास ये आते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ये ओमेगा 3 टर्म क्यों यूज़ है, क्योंकि इस एंड से हम कंसिडर करेंगे जो हमारा डबल बॉन्ड होगी वो थर्ड नंबर कार्बन पे होगी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो एक थर्ड नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए है ओमेगा 3। अब अगर यही डबल बॉन्ड हमारे 6 कार्बन पे प्रेजेंट हो, यू कैन सी हियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, तो ये हो गया ओमेगा 6। ऐसे ही अगर हमारी जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होगी 9 पोजीशन पे, देन ये क्या हो जाएगा ओमेगा 9। ये हमारे पास एग्जांपल हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। हमारे ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया फर्स्ट वाला, दैट इज न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। अब न्यूट्रल और ट्रू फैट्स क्लियर है, जिसमें हमारे एस्टर बनेंगे सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड विद अल्कोहल। फैटी एसिड्स आपको पता चल गया क्या होते हैं, और उसके साथ ग्लिसरॉल यूज किया हमने एज अ अल्कोहल, तो उसके जो एस्टर होंगे उनको हम सिंपल लिपिड्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वैक्सेस। वैक्सेस लिपिड्स विच आर लॉन्ग चेन saturated fatty acids and a long chain saturated alcohol of high molecular weight other than glycerol। अब वैक्सेस क्या होंगे, ट्रू फैट्स और न्यूट्रल फैट्स में तो वो हम कंसिडर कर रहे थे जिसमें ग्लिसरॉल को एज अल्कोहल यूज करके चलेंगे, लेकिन वैक्सेस में क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल इसमें अल्कोहल यूज नहीं करेंगे, तो ग्लिसरॉल की जगह कोई और अल्कोहल यूज करेंगे, तो हम उसको कहेंगे वैक्सेस। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास बीज वैक्स, लैनोलिन और वूल फैट, सेबम, सेरुमेन, प्लांट वैक्स और पैराफिन वैक्स। अब हमारे पास इसमें एक और आते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। इनको हम ट्राई ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। अब इनको हम ट्राई ग्लिसरॉल्स या ट्राई ग्लिसराइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्राई एस्टर बनता है फैटी एसिड्स का। ट्राई एस्टर बनेगा फैटी एसिड का विद ग्लिसरॉल। ठीक है, विद ग्लिसरॉल हमारा इसमें क्या बनेगा, ट्राई एस्टर बनेगा फैटी एसिड्स का। और ये भी हमारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, और इनको हम न्यूट्रल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं एज आई टोल्ड यू। और ये मोनो और डाई एसाइल ग्लिसरॉल्स भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे मोनो में बनेंगे 1 एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड डाई में बनेंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट कम ओवर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं, जब हम अपने सिंपल लिपिड्स को डेरिवेटाइज कर देंगे। डेरिवेटाइज उसमें कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होगी। अब हम इसमें एडिशन करेंगे ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और प्रोटीन्स। व्हेन वी ऐड ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट, नाइट्रोजन और प्रोटीन्स इन आवर सिंपल लिपिड्स, दे आर डेरिवेटाइज नाउ एंड कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। फर्स्ट इज phospholipids. They are made up of molecule of glycerol or other alcohol having a phosphate group at first position of its OH group. और जो हमारा फैटी एसिड अटैच होगा वो सेकेंड नंबर वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अटैच होगा, और इसमें हमारा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अटैच होगा वो होगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, अब फॉस्फेट जो लिपिड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड। यू कैन सी हियर, ये जो है हमारा, दिस इज हाइड्रोफोबिक हेड, सॉरी हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। अब हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है तो इसमें हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे, और ये यहाँ पर है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जो ये इसके नीचे आ जाती है हमारे पास टेल, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक है तो इसमें होगा हमारा ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स। जिसमें हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो होगा हमारा हाइड्रोफिलिक, और जिसमें हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होंगे। अब आपको पता है फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये हमारा आ जाएगा
टेल में, दैट इज नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. कंपोनेंट ये सर्व करते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. और फॉस्फोलिपिड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है लेसिथिन में, सेफलिन एंड कार्डियोलिपिन में होता है. मेंटेन करता है हमारा ईटीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स. आर्किडोनिक एसिड एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड का जो सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ वेरियस इकोसेनोइड्स. ये हमारे पास फर्दर हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे पास लिपिड्स के टाइप होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेफलिन जो यूज़ होता है ब्लड क्लोटिंग में. ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें अब टर्म है ग्लाइको, मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जब हमारे लिपिड्स अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स. अभी कहाँ कहाँ होते हैं? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, और पर्टिकुलरली हमें मिलेंगे हमारे नर्वस टिश्यूज सच एज ब्रेन, ठीक है. एंड और ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट, मतलब सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके लिए ये एज ए सर्व करते हैं, वो फंक्शन करते हैं, ठीक है. एग्जांपल है हमारे पास सेरामाइड और वन ऑफ मोर शुगर्स. इसके आगे 2 फर्दर टाइप्स होते हैं, ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड एंड गैंग्लियोसाइड्स. नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन्स. Lipoproteins, the term indicates their structure. Lipo means lipids and proteins. When lipids are combined with proteins, they are called as lipoproteins. They are further of 5 types. First is chylomicron. Chylomicron means ultra density, ultra very low density, ultra low density lipids. Second one is VLDL, that is very low density lipids. Third is LDL, low density lipids. Fourth is HDL, high density lipids, also known as good cholesterol. Fifth one is free fatty acid and albumin complex. लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मेनली हमें मिलते हैं मिल्क और एग यॉक में, ठीक है. और ये हमारे हेल्प करते हैं हमारे फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में. Next is our derived lipids. We already have studied 2 types of lipids. First is simple lipids, second is complex lipid. Now third one is derived lipids. Derived lipids क्या होते हैं? जब हम simple और complex lipids की हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमारे पास डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होंगे जिनको हम derived lipids कहेंगे. ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टीरॉइड्स, 3 टाइप्स के होते हैं, स्टीरॉइड्स, टर्पिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सबसे पहले आता है हमारे पास स्टीरॉइड्स. यू कैन सी हियर स्टीरॉइड्स में हमारे पास क्या क्या आएंगे? कोलेस्ट्रॉल हो गया, एर्गोस्टेरोल हो गया, जितने भी स्टीरॉइड्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे स्टीरॉइड्स में. लाइक, और ये क्या स्टीरॉइड्स बने होते हैं हमारे पास 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स के साथ, ठीक है. इसके एग्जांपल है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, ये सारे हमारे स्टीरॉइड्स में आते हैं, ठीक है. द स्टीरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स बट आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स एज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज. इनके पास एज कोई फैटी एसिड का ग्रुप नहीं होता है, फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन इनको क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फैट जो जितने भी हमारे लिपिड्स हैं उनके जैसी होती है, इसको इसलिए हमने लिपिड्स में ऐड किया है. नेक्स्ट इज टर्पीन्स. टर्पीन्स हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे विटामिन ए, ई और के. इनके अंदर टर्पिनॉइड्स होते हैं. टर्पिनॉइड्स की यूनिट होती है आइसोप्रीन, उसको हम कहते हैं. जो ए विटामिन में टर्पिनॉइड होंगे उसको कहेंगे हम फाइटोल, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरोटीनॉइड. ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है. एक नेक्स्ट मैंने इसमें आपको बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारे पास एक हार्मोन्स का ग्रुप है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर ब्लड वेसल्स. Our lipids are complete. Now we are going to discuss about nucleic acids. Nucleic acids, and one more thing. Lipids are not polymers. Like carbohydrates are polymers, proteins are polymers, and nucleic acids are polymers. But lipids are not polymers. Remember this thing. Now nucleic acids. Nucleic acids are polymer that consist of nucleotide and located in nuclei of cell.
and these are hereditary determinants of living organism. Hereditary determinants are why? Because they contain DNA and RNA which are genetic material that is hereditary. नेक्स्ट इज इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. अब सबसे पहले हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है. न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होंगी. फर्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड इज शुगर, थर्ड इज नाइट्रोजिनस बेस. फॉस्फेट ग्रुप में हमारे पास आएगा फॉस्फोरिक एसिड. अब आती है बात शुगर की. शुगर 2 तरह के हो सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज. जब हमारे पास डीएनए होगा तो उसमें हमारा शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज, और जब आरएनए होगा तो शुगर होगा राइबोज. थर्ड हमारे पास चीज़ आती है नाइट्रोजिनस बेस. अब नाइट्रोजन बेस भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं. हमारे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही पेंटोज शुगर होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें? देखो, डीऑक्सीराइबोज मतलब इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, तो ये ऑक्सीजन जो कम होगा वो सेकंड नंबर वाली पोजीशन. देखो, राइबोज में ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में इस सेकंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजिनस बेस यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड्स. इसमें हमारे पास 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. वन इज़ प्यूरिन एंड सेकंड इज़ पैरामिडिन. प्यूरिन्स में जो बेसिक मॉइटी आएगी वो प्यूरिन्स की होगी, और पैरामिडिन में बेसिक मॉइटी पैरामिडिन की होगी. इन 2 बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है. प्यूरिन्स में हमारे पास 2 तरह के आते हैं. फर्स्ट इज़ एडेनिन एंड सेकेंड इज़ ग्वानिन. और पैरामिडिन में हमारे पास 3 आते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल. अब ये क्या करते हैं? जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, पॉलीमर बनाएंगे, तभी हमारे पास 6 स्ट्रैंड बनेंगी. और अब हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है. अब ये देखो, यहाँ पर ये एक चेन बनी हुई है. इसको हम कहते हैं शुगर बैकबोन. जब हमारे पास इसके ऊपर सिर्फ इतने को बोलेंगे हम शुगर बैकबोन, जब हमारे पास इस पर नाइट्रोजिनस बेस नहीं लगे होंगे. जब हमारी शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, ऐसे ही हर एक शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच है, उसके बाद यहाँ एक ग्रुप लग जाएगा नाइट्रोजिनस बेस का हर एक के साथ. अब जब यहाँ पर डबल स्ट्रैंड बनेगी डीएनए के लिए, तो जो ये एडेनिन है ये हमेशा कंबाइन करेगा हमारे थायमिन के साथ. ये एडेनिन किसके साथ कंबाइन करेगा? थायमिन के साथ. और ये आरएनए में कंबाइन करेगा यूरेसिल के साथ. ठीक है. और जो साइटोसिन होगा वो हमेशा कंबाइन करेगा ग्वानिन के साथ. अब जो इसमें ये बीच में है ये कंबाइंड होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो हमारा साइटोसिन होगा वो 3 बॉन्ड्स बनेंगे उसके किसके साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अटैच होगा हमारे ग्वानिन के साथ. ठीक है. और ये आरएनए और डीएनए दोनों में सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन एडेनिन जो है वो हमारा डीएनए में अटैच होगा किसके साथ? थायमिन के साथ विद डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. लेकिन हमारे आरएनए में एडेनिन किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा हमारे यूरेसिल के साथ. तो उसमें ये है डिफरेंस आरएनए और डीएनए में. ठीक है. मेरे पास
अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डीएनए और एमआरएनए के बारे में। डीएनए जो होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों बोला है इसमें, क्योंकि जो इसमें शुगर है, पेंटोस शुगर है, वो डीऑक्सीराइबोज है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आरएनए में हमारी जो पेंटोस शुगर है वो राइबोज है। ठीक है, इसलिए इनके नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज़ डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आरएनए। जो हमारा आरएनए है वो फर्दर हमारा 3 टाइप्स का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर मतलब उसके नेम से इंडिकेटर है, जो ट्रांसफ़र करेगा अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पे। ये हमारे 10 to 15% होते हैं टोटल आरएनए के। ठीक है, और ये अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये 75 to 80% होते हैं टोटल आरएनए के, और ये डिफरेंट साइज में हमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो होता है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड से हमारा मैसेज लेके आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। These are the structures of mRNA, rRNA and tRNA. Thank you.